everyone, welcome to the sociology class. So this is the part 6th of the mock that we are doing under the series Everyday Mock for Sociology CUET NET 2023. In this series we solve 20 MCQs every day and I am your educator Bharvi Bharadwaj. And this is the Telegram channel that you must join because मैं topic पहले से ही इस पे बता देती हूँ so that you guys can revise, prepare and then come for the mock. So let us start and see आज के mock में हम लोग क्या questions. So let us start and see what kind of questions we are going to solve today. Today's topic is social control and deviance, a very important topic for CUET. Okay. Question number 1. The term control involves what? Control word जो है उसमें क्या क्या आता है? The idea of restraint or direction, overtone to a culture, system of land reforms, none of the above. Control मतलब से हम क्या समझ रहे हैं? Very easy question. The correct option is A. Control का मतलब होता है एक तरह का restraint और किसी चीज को direction देना. Okay? Question number 2. Which of the following is not true about term control? Control के बारे में क्या चीज यहाँ पर सही नहीं है? Not true. The idea of restraint or direction, process or technique of control, it stands on the way of democracy, none of the above. The correct option is C. कभी भी social control या किसी भी तरह का control democracy के बीच में नहीं आता है. ठीक है? देखो, we live in a democratic world right now, but still we have some kind of social control in our lives, है ना? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि democracy से कोई मतलब नहीं है social control में. Okay? Question number 3. Which of the following is not true about social control? Social control के बारे में इसमें से क्या चीज सही नहीं है? It includes the formal and informal mode of collective control. It refers to the restraint and direction of personal or group behavior so far. It is system of land reforms, none of the above. Very easy question. The correct answer is C. That is, it is system of land reform. तो social control कोई land reform का system तो नहीं है, तो option C हो जाएगा. Question number 4. The term social control as were used refers to the restraint and direction of personal or group behavior so far. It is said by whom? P.V. Young, Ritter and Hero, Karl Marx और D option यहाँ पे है नहीं but मान लो none of the above. So this question is lesser known. ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता है, ना ये question कहीं पे भी आया है. But topic के अंदर था तो I added this. The correct answer is B. That is Ritter and Hero. Question number 5. Which of the following is true about social control? इसमें से क्या चीज social control के बारे में true है? The idea, this is idea, not गलत spelling है, ठीक है? The idea of restraint and direction includes formal and informal mode which has an impact on others. Both of these, none of these. The correct answer is C. That is both of these. Question number 6. Social control involves what? Reciprocal modification, adjustment in act, adjustment in attitude, all of the above. Social control में किस चीज पे हम ज्यादा फोकस करते हैं? The correct answer is D. That is all of the above. Question number 7. In our modern times, every society is exclusively competitive. No society is exclusively cooperative. No society is either exclusively competitive or exclusively cooperative. So पढ़ो इसे समझो and let me know the correct answer. The correct answer for question number 7 is B. कोई भी सोसाइटी पूरी तरह से competitive भी नहीं होती है और पूरी तरह से cooperative भी नहीं होती है. That's why we need social control. Okay? Question number 8. Looks of disgust directed at someone who has spit on the sidewalk would be an example of what? किसी को घूर के देखना क्योंकि उसने साइडवॉक पे स्पिट किया है, इसे हम किस में डालेंगे? इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में, फॉर्मल सोशल कंट्रोल में, या फिर एवर्सिव सोशल कंट्रोल, प्यूनिटिव सोशल कंट्रोल? इन दोनों के नोट्स मैं टेलीग्राम पे दूंगी. बाकी इनफॉर्मल और इनफॉर्मल और फॉर्मल तो बहुत आसान है. तो अगर आप किसी को घूर के देख रहे हो क्योंकि वो गलत काम कर रहा है तो ये कौन सा सोशल कंट्रोल होगा? वेरी इजी. द करेक्ट आंसर इज ए. दैट इज इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. Being arrested for spitting
ऑन द साइड वॉक वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी अब आपको अरेस्ट कर लिया गया उसी सेम चीज के लिए है जो आपने की. इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, फॉर्मल सोशल कंट्रोल, इंटरनल सोशल कंट्रोल, इनएप्रोप्रिएट सोशलाइजेशन. मैंने ऑलरेडी एक क्लास ले रखी है सोशल कंट्रोल पे, प्लीज वॉच दैट. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज फॉर्मल सोशल कंट्रोल. Question number 10. Black argues that there is an inverse relationship between informal and formal social control. ब्लैक एक सोशोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि इनफॉर्मल और फॉर्मल में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है. तो इसका क्या मतलब है? तो स्टेटमेंट्स पढ़ो. द मोर फॉर्मल कंट्रोल देयर इज इन अ सोसाइटी, द मोर इनफॉर्मल कंट्रोल इज प्रेजेंट. कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा फॉर्मल कंट्रोल होगा उतना ही ज़्यादा इनफॉर्मल कंट्रोल होगा. ठीक है. नेक्स्ट है द मोर इनफॉर्मल कंट्रोल देयर इज इन सोसाइटी, द लेस देयर इज फॉर्मल कंट्रोल. मतलब अगर ज़्यादा इनफॉर्मल कंट्रोल होगा तो फॉर्मल कंट्रोल की ज़रूरत कम पड़ेगी. द लेस फॉर्मल कंट्रोल देयर इज इन सोसाइटी, द लेस देयर इज नीड फॉर इनफॉर्मल कंट्रोल. जितना ज़्यादा फॉर्मल कंट्रोल होगा उतनी ज़्यादा हमें इनफॉर्मल कंट्रोल की कम ज़रूरत पड़ेगी. सोसाइटी हैज़ लिटिल नीड फॉर एनी टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल. यानी किसी भी मतलब सोसाइटी को ज़रूरत ही नहीं है सोशल कंट्रोल की, बहुत कम ज़रूरत है. ठीक, तो इसमें क्या होगा इनवर्स रिलेशनशिप में? थोड़ा सा दिमाग लगाना. द करेक्ट आंसर हेयर इज बी. ठीक है, देखो जितना ज़्यादा इनफॉर्मल कंट्रोल होगा, मतलब अगर लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे चीज़ों के, एक दूसरे को गलत करने पे टोकेंगे, तो फिर हमें उस चीज़ के लिए फॉर्मल कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना. सो दिस वुड बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. वाइट कॉलर क्राइम इज लो इन विजिबिलिटी बिकॉज ऑफ व्हाट? वाइट कॉलर क्राइम जो होते हैं वो देखने को जल्दी नहीं मिलते हैं, इसका क्या रीजन होगा? इट इन्वॉल्व्स ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, द प्रोलेटेरिएट कैन आउटस्मार्ट द बुर्जुआ, द पुलिस टर्न अ ब्लाइंड आई टू कॉर्पोरेट क्राइम, या फिर इट गोज अनडिटेक्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरी डे बिजनेस ट्रांजेक्शन. दिस इज एवरी डे. ओके, तो क्या होगा इसका आंसर? द करेक्ट आंसर वुड बी डी, दैट इज होते तो हैं ऐसे क्राइम पर अनडिटेक्टेड रहते हैं, हमें पता ही नहीं चल पाता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. डैश of what is the failure of companies to adhere to legal regulations that apply to them? An example, मतलब कि जो कंपनीज हैं वो अपने लीगल रेगुलेशंस पे नहीं खड़ी उतरती हैं, फेल हो जाती हैं, इसको हम किस तरह के क्राइम में डालेंगे? व्हाइट कॉलर क्राइम, कॉर्पोरेट क्राइम, विक्टिमलेस क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. The correct answer is B, that is corporate crime. Okay. Question number 13. Which approach holds that deviance is not a feature of a group or individual, but a process of interaction through which one group becomes defined as deviant? इनमें से कौन सी ऐसी अप्रोच है जो ये कहती है कि डेवियंस एक किसी सोसाइटी का फीचर नहीं है, बट एक प्रोसेस है जिसमें कि एक इंसान को आप डेविएंट डिफाइन कर देते हो और वो डेविएंट हो जाता है, या एक ग्रुप को? तो फिर ये किस में बात की गई है? लेबलिंग थ्योरी में, कंट्रोल थ्योरी, फंक्शनलिस्ट थ्योरी, या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी? मैं ये थ्योरी ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ चैनल पे, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी. किसने दी है ये भी आपको बताना है. द करेक्ट आंसर विल बी ए. लेबलिंग थ्योरी में हम ये पढ़ते हैं और ये हमें दी थी हार्वर्ड बेकर ने. नहीं देखा है तो जाके देखो, CUET में प्लेलिस्ट में ऐड है. ओके, हार्वर्ड बेकर. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज हार्वर्ड बेकर्स फेमस डेफिनेशन ऑफ डेवियंस? हार्वर्ड बेकर ने डेवियंस की क्या डेफिनेशन दी है? डेविएंट बिहेवियर इज बिहेवियर दैट इज लेबल्ड सो बाय द लॉ. डेविएंट बिहेवियर इज बिहेवियर दैट पीपल सो लेबल. डेविएंट बिहेवियर इज दैट लेबल्ड बाय द प्रिपरेटर्स. डेविएंट बिहेवियर इज दैट विच कॉजेज पब्लिक ऑफेंस. द करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि लोग जिसको लेबल कर देते हैं, जिस बिहेवियर को, वही हमारा डेविएंट बिहेवियर हो जाता है. Question number 15. According to strain theory, dash are those individuals who have traditional success goals but substitute deviant means by which to achieve them. कह रहे हैं कि स्ट्रेन थ्योरी में ऐसे लोग कौन से होते हैं जिनके गोल्स तो ट्रेडिशनल होते हैं, मतलब उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी हमारे ट्रेडिशनल गोल्स हैं, बट उनको पाने का जो तरीका है वो डेविएंट है. ठीक है, उनका जो मीन्स है, जिस वे पे चल के वो उस गोल को अचीव करेंगे, वो ट्रेडिशनल नहीं है, वो डेविएंट है. ऐसा तरीका अपनाएंगे जो कोई नहीं अपनाता. ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? रिचुअलिस्ट,
रेटरिलिस्ट्स, रेबल्स, इनोवेटर्स या फिर कन्फर्मिस्ट। और स्ट्रेन थ्योरी किसने दी है ये भी बताना। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज इनोवेटर, एंड स्ट्रेन थ्योरी हमें दी है मर्टन ने। क्वेश्चन नंबर 16, द माफिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। एक माफिया किस चीज का एग्जाम्पल होगा? व्हाइट कॉलर क्राइम का, ऑर्गेनाइज क्राइम का, नॉन क्रिमिनल डेविएंस या फिर ग्लोबल टेररिज्म। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है, एक माफिया जो होता है वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करके क्राइम करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज क्राइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म सेकेंडरी डेविएशन refers to what? Secondary deviation क्या होता है? The punishment or stigmatization of deviant act, the labeling of an act as a deviant through social reaction to it, the ways in which taking on a deviant role affects future action, all of the above. तो secondary deviation का क्या मतलब होता है? The correct answer is D, that is all of the above. ठीक है, तो ये चीज याद रखना। Question number 18. What is defined as non-conformity to a given set or norms that are accepted by a significant number of people in a community or society? क्या चीज है इसमें से जो कि नॉन कन्फर्मिटी जिसको हम कहते हैं, यानी आप अपने सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उस पे आप नहीं कन्फर्म कर रहे हो, वो आप नहीं कर रहे हो और दूसरी चीजें कर रहे हो। क्रिमिनलिटी, डेविएंस, रेसिड्यूइज्म, डीजेनरेसी। Very easy question. The correct answer is B, that is deviance. Question number 19. The sociologist responsible for the modern day adaptation of strain theory. Strain theory किसकी है मैंने अभी बताया है, वेबर, कोहेन, मार्क्स, मर्टन। The correct answer is D, that is Merton. Now last question of the day. Who supported psychoanalytic method to treat the offender? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया हुआ है। कार्ल मार्क्स, फ्रूड, स्किनर, ऑल ऑफ द अबव। किसने यूज किया था साइको एनालिटिक मैथड? अ वेरी बिग कीवर्ड फॉर दिस पर्सन। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज फ्रूड। ठीक है, सो 20 क्वेश्चंस वी हैव डन। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ मच यू आर स्कोरिंग। So that's it for today. Don't forget to subscribe if you are a sociology student and watching me for the first time. Go to playlist, वहाँ पे आपको जो भी important लगे उस हिसाब से पढ़ाई start कर दीजिए। This is the Telegram channel that you have to join, and all the important things you will find on this Telegram only. There's a discussion group also. You can also join that if you have any doubt and you want to talk to other sociology students. ठीक है, This is my Telegram. अगर कोई भी personal doubt है, कोई भी sociology related query है मुझसे पूछनी है तो यहाँ पे पूछ सकते हो। Thank you very much guys. मिलते हैं कल. Keep learning.